This video is about documents needed to show your presence in the United States. ये वीडियो अमेरिका में आपकी उपस्थिति दिखाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में है। This video is only for some clients of Helen Terakich Law, for clients whose application is now ready to add these documents. ये वीडियो केवल हेलन टैरोकिच लॉ के उन क्लाइंट्स के लिए है जिनका एप्लीकेशन अब इन दस्तावेजों को जोड़ने के लिए तैयार है, जिसका मतलब है कि जिनकी एप्लीकेशन अब तैयार है और उसको हम बहुत जल्दी फाइल करने वाले हैं, उन क्लाइंट्स के लिए ये वीडियो है। You only need to collect these documents if our legal team tells you to do so for your case. आपको ये दस्तावेज केवल तभी एकत्र करने होंगे यदि हमारी कानूनी टीम आपको अपने मामले के लिए ऐसा करने के लिए कहे। You only need to send us these documents when our legal team asks you for them. आपको हमें ये दस्तावेज केवल तभी भेजने होंगे जब हमारी कानूनी टीम आपसे ये दस्तावेज मांगेगी। Thank you. Hello, my name is Tayeba Qureshi. I'm an attorney here at Helen Terakich Law, and we're going to be going over today an email that you might have gotten regarding records to show your presence in the United States. And I will go over it in English, and my colleague will go over it in Hindi so that you can understand it. Ms. Somya? नमस्कार, थैंक यू तैयबा जी। मेरा नाम सौम्या गुप्ता है और मैं हेलन टैरोकिच लॉ के लिए काम करती हूँ। आज हम आपको उन दस्तावेजों के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपको ईमेल आई है, जहां पर आपको हमें क्या-क्या चीजें देनी हैं और कौन-कौन से दस्तावेज हम आपसे मांग रहे हैं, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। So you will see this email that you see on the screen before you, and we're going to read it to you in English, and Ms. Somya will translate it for you in Hindi. The title is Records to Show Your Presence in the United States. And the instruction is, we need a document with your name on it that shows you were in the United States for every month of this time. Think about anything that will show you were in the United States for that month. We only need one record per month. तो जो पहली चीज हमें आपसे चाहिए होगी, उसमें है कि हमें ये प्रदर्शित करना है कि आप लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका में रह रहे हैं। और ये वो दस्तावेज होगा जिस पे ऊपर आपका नाम होगा, जो हमें ये बताएगा कि आप हर साल के हर महीने में उस समय इस देश में थे। आप ऐसे किसी समय के बारे में सोच सकते हैं जो कि आपको ये बताए कि आप उस महीने में इस देश में थे और हमें हर महीने के लिए आपका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए होगा। For example, you can submit the following documents: financial records and records of purchases, so bank statements from your bank or credit card statements if they show that you are using your card, your bank card, or your credit card to spend money in the US. Receipts for regular expenses or large expenses like oil change, house repairs, or receipts for purchases made at a store in the United States. Membership for a store like Costco or Sam's or BJ's, or even a gym membership. Stimulus checks from the US government, such as those that came from COVID. And if you write checks, you can copy the register balance from your checkbook. You can send us records of Venmo or Cash App records for transactions you made using an app on your phone, and bank books or any other records from your bank. उदाहरण के तौर पर आप क्या-क्या दस्तावेज हमें दे सकते हैं। पहली चीज है कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसमें आपके जो आप चीजें खरीदते हैं, उसमें सबसे पहली चीज आती है आपका बैंक स्टेटमेंट अथवा आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, जो कि हमें ये बताता है कि आप अमेरिका में रहते हैं और आप यहाँ पर पैसा खर्चा करते हैं। आपके जो बड़े एक्सपेंसेस हैं, जिसमें कि आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज कराना, आपके घर में कोई तरह का रिपेयर कराना या किसी भी तरह के स्टोर में जो आप ग्रोसरीज खरीदते हैं, उसकी रसीदें भी आप हमें दे सकते हैं।
अगली चीज हो सकती है आपकी कॉस्को, सैम्स क्लब, बीजेस या ऐसे ही किसी अन्य स्टोर की मेंबरशिप का रिन्यूअल या मेंबरशिप के साथ खरीदा हुआ कोई भी सामान जो आपने स्टोर से खरीदा हो। कोई भी स्टिमुलस चेक जो कि यहाँ की सरकार ने आपको दिया हो, जो कि आपको शायद कोविड के समय में मिले होंगे, या फिर अगर आप अपना भुगतान बिलों का चेक के द्वारा करते हैं, तो आप उस चेक की जो कॉपी एक आपके पास होती है, वो भी हमें भेज सकते हैं। अगली चीज होगी आपके लिए आपके वेनमो या कोई भी कैश ऐप जो आप अपने रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं, जहां पर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, या आप किसी को भुगतान करते हैं पैसे का। और आखिरी चीज होगी आपकी बैंक का स्टेटमेंट या आपके बैंक का कागज। Mhm. The next kind of record that is helpful is a bill that has your name on it or the name of the person you live with. So, your spouse, perhaps, or your parent, if their name is on the bill. Gas bills, electricity, light bills, water bills, sewer, trash pickup, phone bills, internet bills, homeowners insurance or renters insurance bills, land rental bill, pest control, landscaping, or other bills for yard work where you live. HOA, homeowners association bills from your neighborhood or your apartment complex or wherever you live. Bills that you spend money on a pet that you might have, a cat or a dog at the vet, at the veterinarian. Amazon purchase history or something that you have bought online that has been delivered to your home or business in the United States. Other delivery bills like grocery delivery, like from Shipt or Instacart or Target or Walmart, whether you go pick it up at the store or it's delivered to your house, or other things you have delivered to your house or driving to your house, like Uber Eats, Uber, or Lyft. अगली चीज जो आप हमें दे सकते हैं, जो कि होंगे आपके सारे बिल्स, जो कि आपके नाम में होने चाहिए या फिर उस व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए जो आपके साथ रहता है। और काफी सारे केसेस में वो आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका नाम उस बिल पर है तो वो आप हमें भेज सकते हैं। अब वो बिल कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको वो समझा देती हूँ। गैस का बिल, आपकी लाइट का बिल, पानी का बिल, सीवर या ट्रैश का बिल, आपके फ़ोन का बिल, आपके इंटरनेट का बिल, आप अगर जिस घर में रहते हैं, उस घर का अगर इंश्योरेंस है या आपके पास किराए वाला इंश्योरेंस है, जिसको कि रेंटर्स इंश्योरेंस बोलते हैं, वो बिल आप हमें भेज सकते हैं। लैंड रेंटल बिल, अगर कोई आपके पास ज़मीन है यहाँ पर, या आप कोई किराए पर आपने स्टोर ले रखा है, जिसकी कोई लीज़ है आपके पास, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर कोई आपने अपने घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया है, जिससे कीड़े-मकोड़े आपके घर में ना आएँ, उसका बिल कोई है, वो आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपने अपने घर में कोई भी काम करवाया है, जैसे आपने बैकयार्ड का कोई काम करवाया है, आपने अपनी घास किसी से कटवाई है, या इस तरह की कोई भी और अन्य सर्विस जो आपने अपने घर में करवाई हो, उसका बिल अगर है, वो भी ये प्रदर्शित करेगा। होम ओनर्स एसोसिएशन का बिल, अगर आप किसी ऐसी मास्टर प्लान कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर एचओए है और उसका आप भुगतान करते हैं हर महीने, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई कुत्ता या बिल्ली है और अगर आप उसको उसके डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उसका जो भुगतान आप करते हैं, वो बिल भी आप हमें भेज सकते हैं। अमेज़न से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं या आपने पहले सामान खरीदा है, चाहे वो आपको डिलीवर क्यों ना हुआ हो आपके घर पे या आपकी दुकान पे या आपके स्टोर पे, आप हमें वो भी भेज सकते हैं। आप जहाँ से अपना सामान खरीदते हैं या आप सामान घर पे मंगवाते हैं, जैसे शिप्ट से या इंस्टाकार्ट से, टारगेट से या वॉलमार्ट से, चाहे आप खुद खरीदने जाते हैं, चाहे वो आप डिलीवर करवाते हैं, वो रसीद भी आप हमें भेज सकते हैं। आखिरी चीज है उबर ईट्स, उबर या लिफ्ट। अगर आप इन सर्विसेज से भी खाना मंगवाते हैं, या आप कहीं गए हैं और आपने उबर बुलाई है, आपने टैक्सी बुलाई है, आप लिफ्ट से गए हैं, तो वो बिल भी हमें आप भेज सकते हैं। The next category of records that are helpful are insurance and license records. The best is if they are in your name or if it is a kind of insurance that can cover an entire family at the same time, then listing the people's name who live with you. So, car insurance, car title, car registration records.
insurance for other vehicles such as a motorcycle, a moped, or a boat, a license to go fishing, a license to go hunting, and then any kind of health records are always good. So health insurance, dental insurance, eye insurance, or bills for paying for vaccines, dental cleaning, doctor visits, anything like that. Life insurance policies or bills for paying for things, or DMV records, which are motor vehicles records. Different states might call it a different office. Here in North Carolina, it's called Department of Motor Vehicles, but it might be called something different where you live. So your driving records, even if it shows that you got a traffic ticket, those can also be helpful. तो जो अगली कैटेगरी है वो है आपके इंश्योरेंस और आपके लाइसेंस रिकॉर्ड्स, जो कि आपके नाम पर हो सकते हैं या आपके साथ जो व्यक्ति रहता है उसके नाम पर हो सकते हैं। ज्यादातर केसों में वो आपकी पत्नी हो सकती हैं, या आपका बेटा हो सकता है, या आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर वो कार इंश्योरेंस उनके नाम पर है या आपके नाम पर है, साथ में है, तो भी वो आप हमें भेज सकते हैं। उसका टाइटल है, रजिस्ट्रेशन है, वो सारे रिकॉर्ड्स आप हमें भेज सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल, आपकी कार, मोपेड या किसी बोट का इंश्योरेंस आप पे करते हैं, तो भी आप उसकी रसीद हमें भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई फिशिंग लाइसेंस है, मतलब मछली पकड़ने के लिए अगर आप जाते हैं और उसका कोई लाइसेंस है, या अगर आप शिकार करने के लिए जाते हैं और आपके पास हंटिंग लाइसेंस है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर्स के पास जो आपके विजिट होते हैं वो हमेशा से बहुत ही लाभदायक होते हैं आपके केस के लिए। सो अगर किसी तरह के हेल्थ चेकअप के लिए आप जाते हैं, किसी तरह के दांतों की समस्या है और आप किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों की समस्या है और आप किसी आंखों के डॉक्टर के पास गए हैं, वहां का अगर आपके पास इंश्योरेंस है या कोई भी रसीद है जो आपने उनको पेमेंट किया हो आपके विजिट के बाद, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, तो उसका कोई रसीद है जो जिसका कि प्रीमियम आप पे करते हैं, वो भी रसीद आप हमें भेज सकते हैं। और आखिरी चीज है यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल रिकॉर्ड्स, जो कि अगर मान लीजिए आप गाड़ी आपके पास है और आप गाड़ी चलाते हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड आप हमें भेज सकते हैं अगर कोई आपके पास है तो, चाहे वो आपको मिली हुई कोई टिकट ही क्यों ना हो। वो भी आपको ये प्रदर्शित करेगी कि आप उस समय यहाँ पर मौजूद थे। Mhm. The next thing is any records of paying for housing at a house, apartment, mobile home, trailer home, townhouse, anything like that. So, rent or mortgage payments for the month, a record of those, a bill. Money orders that you sent for rent payments to your landlord or to a roommate who's paying all together. Lease agreements, a letter from your landlord explaining that you live in this place and how long you've lived there. So, for example, saying that this person with your name on it has lived at this address from this month and year until this month and year. And at last is a letter from a household member explaining how long you have lived with them and whether you pay rent there or not. So, for example, if you live with your brother, you can have your brother write a letter to say that my sibling has lived with me from this month and year until this month and year, and they pay rent or they don't pay rent. अगली चीज इस श्रेणी में है कि जहां आप रहते हैं, चाहे वो घर है, कोई अपार्टमेंट है, कोई ट्रेलर है या मोबाइल होम है, अगर आप उसका किराया हर महीने देते हैं या आप उसका मॉर्गेज देते हैं हर महीने, वो रसीद, वो स्टेटमेंट भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप मनी ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं अपने किराए को भरने के लिए, वो मनी ऑर्डर की जो रसीद मिलती है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। कोई लीज है अगर आपके नाम से, जहां आपका नाम लिखा है या आपके साथ जो लोग रहते हैं उनका नाम लिखा है, वो आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपका जो मकान मालिक है वो एक हमें चिट्ठी लिख के दे कि आप कहाँ रहते हैं, कब से रह रहे हैं वहां पर, तो ये भी काफी फायदेमंद होगा। एक और चीज आप कर सकते हैं जो कि है कि जिन लोगों के साथ भी आप रहते हैं, अगर वो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं या आपके साथ काम करते हैं, तो वो आपको एक चिट्ठी लिख के दे सकते हैं जिसमें कि वो ये आपको बताएंगे कि आप उनके साथ कब से रह रहे हैं और आप उन्हें कितना किराया हर महीने देते हैं। The next thing is records about your family, including school records if you have children or if you are in school yourself.
So, records for yourself if you are going to a community college or getting your GED or getting English lessons, ESL classes. School records for your children, like letters from the school, report cards, anything like that. If your child has an IEP, an individualized education plan for their special needs, then that is also very good presence evidence, so you can send us that. Daycare payments that you make or childcare payments, or a letter from the daycare provider explaining how long you have sent your children there. Emergency contact forms like you would fill out for a school or a camp or a daycare, listing you as the emergency contact for your child. Records for coming to or checking into school activities, like if you've had to fill out a form or use an app on your phone to show that you are coming to an event for your child's school or sports. Some schools will also have apps like Talking Points or Class Dojo that let you communicate with your teacher, your child's teacher, so you could send us records of those. If you have someone who has passed away, you can send a funeral or a death record showing that you were there at that time. Records from lessons that you have taken or your children have taken, like music, sports, chess, tutoring, martial arts, swim lessons, or any other extracurricular activities. And if you or your children received any kind of certificate from classes that they are taking or you are taking, or any awards, and we could have copies of that. तो अगली चीज है श्रेणी में कि आपके परिवार के और आपके स्कूल के दस्तावेज, जो कि है रिकॉर्ड सबसे पहले आपके लिए होगा कि अगर आप किसी कम्युनिटी कॉलेज में एनरोल्ड है या आपका कोई जीईडी रिकॉर्ड है, अगर आप कोई इंग्लिश सीखने की कक्षाओं में जाते हैं या इसके अलावा किसी और तरह की आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अगर उससे जुड़ी हुई कोई भी भुगतान की रसीद है या बिल है तो वो आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपके बच्चों का कोई स्कूल स्कूल रिकॉर्ड है, जैसे कि कोई लेटर आया हो आपके पास स्कूल से या फिर बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जो समय-समय पर आपको मिलता है, वो आप हमें भेज सकते हैं। आईईपी, अगर आपका बच्चा कोई इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में है, जो कि स्कूल उनको देता है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रमाण है कि आप उस समय यहाँ पर थे, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल में जाता है और उसके लिए एक आईईपी सेट की गई है, तो उसकी कॉपी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपका बच्चा किसी डे केयर में जाता है, अगर आप वहाँ पर उसको भेजते हैं और वहाँ से कोई चिट्ठी आप हमें भेज सकते हैं कि ये हर महीने आप उसका भुगतान करते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अथवा आपका बच्चा उस डे केयर में कब से जा रहा है और कितने समय तक वो वहाँ रहता है, अगर वो हमें वो लिख के दे देंगे, तो वो भी काम हमारा चलेगा। कोई भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का फॉर्म जिस तरह से आप अपने बच्चे के स्कूल में भरते हैं कि अगर कभी इमरजेंसी में उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़े और आपका फ़ोन अगर ना लगे, तो वो किसी को कॉन्टैक्ट करें, तो आप वो लिस्ट भी हमें भेज सकते हैं। कोई भी रिकॉर्डिंग जो आप बच्चे के स्कूल की एक्टिविटी में जाते हैं, जैसे कि कोई खेल हो सकता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई म्यूज़िक की कक्षा, किसी भी तरह की एक्टिविटी में अगर आपका बच्चा भाग लेता है या कोई कोई पारिवारिक इवेंट है जिसमें कि आप गए हैं और उसका कोई दस्तावेज़ आपके पास है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। प्रिंट आउट, आपकी अगर टीचर के साथ कोई बात हुई है, आपके स्कूल के टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, उनके स्पोर्ट्स एकेडमिशियन के साथ, कोई भी अगर बातचीत आपकी हुई है, उसका कोई भी रिकॉर्ड आपके पास है, तो वो भी आप प्रिंट आउट करके हमें भेज सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है या किसी के भी फ्यूनरल में आप गए हैं और उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोई म्यूजिक सीखता है या आप कोई म्यूजिक सीखते हैं या आपकी पत्नी या घर में अन्य कोई भी सदस्य जो आपके साथ रहता है, वो ऐसे किसी भी कक्षा में एनरोल्ड है या वो कराटे सीखता है या वो स्विमिंग सीखते हैं या किसी भी अन्य तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं जो कि पढ़ाई के अलावा हो, अगर आप वहां उनको लेके जाते हैं और आप उनको कोई पैसा देते हैं और उसकी कोई रसीद आपके पास है, वो आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई सर्टिफिकेट मिला है स्कूल से जो कि अच्छी अटेंडेंस का हो सकता है, अच्छे ग्रेड्स का हो सकता है या फिर कोई अवार्ड हो सकता है जो उसको स्कूल से मिला हो, उसने अपनी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा हो, उसके लिए कोई अवार्ड मिला हो उसको या फिर कोई अखबार में उसके बारे में कोई आर्टिकल आया हो,
कुछ भी ऐसा अगर है, तो उसकी एक प्रति आप हमें भेज सकते हैं। Mhm. And just to clarify for the funeral or death records, we don't necessarily mean a picture of you attending someone's funeral, but if you are paying for those expenses for the funeral of someone in your family or your close friends, then we could have receipts or bills from those records. फ्यूनरल और मृत्यु के बारे में थोड़ी हम यहाँ पर आपको और एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, जिसका मतलब है कि ये इसका मतलब नहीं है कि आपके हमें फोटो चाहिए किसी मृत व्यक्ति के साथ। हमें वो जानकारी चाहिए, जैसे कि आपने किसी के लिए पैसा दिया हो और उसका कोई भी रिकॉर्ड आपका हो, जो कि इस दुनिया से अब चला गया और आपने उसके संस्कार के लिए पैसे दिए हो, Mhm. तो वो भी रिकॉर्ड आप हमें भेज सकते हैं। And for many of these records that we're talking about on this screen and some of the previous ones, if you're sending us a screenshot from your phone, just make sure that the date is visible. So, for example, if you're sending a screenshot of an app conversation with your child's teacher, just make sure that the date is visible before you send us that screenshot. एक बात यहाँ पर मैं आपको साफ कर दूं कि अगर आप अपने फोन से कोई स्क्रीनशॉट लेके हमें उसकी कॉपी भेज रहे हैं, तो उस पर हमें वो तारीख साफ दिखाई पड़नी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप आपके बच्चे के टीचर के साथ कोई बात कर रहे हैं, कोई ईमेल एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उसकी तारीख और समय वहां पर साफ हमें नजर आना चाहिए। Thank you. Okay. The next thing is medical records. Medical records are very, very good records for yourself or your child to show that you were here in the United States in that month. So, records showing that you received some medical service, like a vaccine card, exam results, like you maybe got a blood test, receipts for buying a prescription medicine from the pharmacy, and also medical records for your children because you took them to the doctor. So, records to show that they are attending their once a year physical for growing children, or if your child has the flu or something and you've taken them to the doctor to get it checked, records of that visit. Medicaid or other public benefits that your children might be receiving, records from that. Physical therapy, massage therapy, chiropractors, any kind of therapy that you are receiving, or even, this says physical massage or chiropractor, but even if you're receiving emotional counseling or therapy, that is a good record to show. Records from the OBGYN doctor and birth certificates of children who are born in the United States. Those are good evidence of presence in the United States. जो अगली श्रेणी आती है उसमें है वो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो कि आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए और आपके बच्चे के लिए हो सकते हैं। ऐसे कोई भी रिकॉर्ड जो हमें ये दर्शाते हो कि आपने वो मेडिकल सर्विस ली है, जिसका मतलब है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, क्लिनिक में गए हैं, आपने कोई टीका लगवाया है, कोई तरह का आपने टेस्ट करवाया है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है, आपकी खून की जांच हो सकती है, पेशाब की जांच हो सकती है, किसी तरह का ऐसी जांच हो सकती है जिसके लिए आपने पैसे दिए हों और उसकी रसीद आपके पास हो। या फिर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन खाते हैं, जो डॉक्टर ने आपको दवा लिख के दी है और हर महीने आपको वो दवा किसी फार्मेसी से जाके लेनी पड़ती है, उसकी रसीद भी आप हमें भेज सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड आपके बच्चे के लिए भी चलेगा, चूंकि आप उसको लेके गए थे उस डॉक्टर के पास। मेडिकेड या इस तरह की कोई सरकारी अ, व्यवस्था जो आपको और आपके बच्चे को सहयोग देती है आपकी दैनिक जिंदगी में, उसकी भी कोई रसीद अगर आपके पास है, तो वो आप हमें भेज सकते हैं, अथवा कोई चिट्ठी आपके पास है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप थेरेपी में हैं, वो थेरेपी आपकी फिजिकल थेरेपी हो सकती है, जैसे कि आपको अगर फिजियोथेरेपी में जाना पड़ता है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको देखता है और वो आपको वहां पैसा देना पड़ता है, वो रसीद आप हमें दे सकते हैं। अगर आप मसाज कराने जाते हैं, मसाज थेरेपी, तो उसकी रसीद भी आप हमें दे सकते हैं। आप किसी थेरेपी में हैं, किसी काउंसलर के साथ में, या किसी आप मेंटल थेरेपी में हैं, जो कि मानसिक चिकित्सा से संबंधित है, उसको अगर आप पैसा देते हैं, वो रसीद भी आप हमें दे सकते हैं। या फिर आप किसी कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, वो भी मान्य है। आखिरी चीज़ है, आप अगर अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को किसी भी अ, जो
स्त्री रोग से संबंधित डॉक्टर हैं, जिनको कि ओबीजीवायन कहते हैं, उनके पास अगर आप लेके जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, उनका अपॉइंटमेंट है या उनके बिल की भुगतान की रसीद है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। And the last thing is birth certificates of children born in the United States. और जो अंतिम चीज़ है श्रेणी में, वो है कि अगर आपका बच्चा यहाँ अमेरिका में पैदा हुआ है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र अथवा बर्थ सर्टिफिकेट भी आप हमें भेज सकते हैं। Mhm. Okay. The next category of documents that can show your presence in the United States are employment records. So, paycheck stubs, timesheets showing that you worked during a particular month, a letter from your employer or a coworker that confirms that you worked at this place from this time to this time and telling them what your job was. So, for example, if you are a cashier or a landscaper or something, the letter explaining what you do and how long you've worked there. And remember, this is optional. It says there on the list optional. You don't have to ask your employer or coworker for a job for a letter. If you're comfortable doing so, you can, but you don't have to. 1099 forms, W-2 forms, so tax forms are helpful. And make sure that they are signed. Make sure you sign them. Employee of the month or any other recognition from work, so a certificate that shows you have performed well or you have taken a work training, anything like that. Recommendation letters from former employers. Again, getting letters from employers is optional. You do not have to ask them for letters if you have some other record for that month. Workers' compensation claims or records. So if you were injured on the job and you filled out a workers' comp claim form or got some treatment for being injured on the job, records from that. And then any kind of career training documentation. So if you work at a restaurant, maybe you got Safe Serve training, or you got OSHA for workplace safety, or you took any kind of training within your job and they gave you a certificate for it, that would be a good document to send us. जो अगली श्रेणी है यहाँ पर हमें, वो है आपकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, जिसका मतलब है कि आप जहाँ भी काम करते हैं, वहां से अगर आपको जो भी तनख्वाह मिलती है हर महीने, वो जो आपको सैलरी मिलती है उसकी स्लिप आप हमें दे सकते हैं। अगर कोई टाइम शीट भरते हैं आप, आपने किसी महीने में जितने भी घंटे काम किया और कोई टाइम शीट आपने सबमिट की है, वो आप हमें भेज सकते हैं। आप कोई चिट्ठी अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं या फिर जिसके साथ आप काम कर सकते हैं, जो कि हमें ये बताए उस चिट्ठी में कि आप किस रूप में वहाँ काम करते हैं, मतलब आपका जॉब टाइटल क्या है। आप कैशियर हो सकते हैं, आप मैनेजर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और आपने वहाँ पर कब से कब तक काम किया है। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है, जिसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये चिट्ठी अपने बॉस से माँगें या ये चिट्ठी आप अपने सहयोगी से माँगें। अगर आप चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कोई 1099 फॉर्म भरते हैं, जो कि आपके टैक्स में भी लगता है, वो आप हमें उसकी कॉपी भेज सकते हैं। कोई W-2 आपको मिलता है अगर, उसकी एक प्रति आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है अपने काम पर, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या किसी भी अन्य तरह का कोई भी रिकॉग्निशन जो आपको मिला हो आपके काम से, वो आप हमें भेज सकते हैं। अगर कोई आपको प्रशस्ति पत्र मिला है, जैसे कि आपको कोई रेकमेंड कर रहा है, आपके पुराने किसी जहाँ आप काम करते थे, उसने आपको किसी और से काम करने के लिए बोला है और आपकी बहुत प्रशंसा की है, वो प्रशस्ति पत्र आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप काम पर कभी आपको चोट लगी है और आप किसी अस्पताल में गए हैं और आप किसी क्लिनिक में गए हैं, किसी इमरजेंसी या अर्जेंट क्लिनिक में गए हैं और वहां पर आपको वर्कर्स कॉम्प क्लेम भरना पड़ा है, उसका रिकॉर्ड भी आप हमें भेज सकते हैं। आखिरी चीज है, अगर आपने अपने करियर में या जहां आप काम करते हैं वहां आपको कोई ट्रेनिंग मिली है, और जैसे कि सेफ सर्व जो सुरक्षा से संबंधित होती है, ओशा, या ऐसी ही कोई भी अन्य ट्रेनिंग जो आपको मिली है आपके काम पर, उसका दस्तावेज भी आप हमें भेज सकते हैं। Any kind of government records can also be helpful. A social security card that you've obtained, social security records, disability records, selective service registration card, military records,
a state identification card or a local identification card, and a driver's license. सोशल सिक्योरिटी और सेलेक्टिव सर्विस या कोई भी आपका सरकारी दस्तावेज, ये बहुत ही जरूरी श्रेणी है, क्योंकि इसमें आपके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड हो सकता है, आपके सोशल सिक्योरिटी का नंबर का जो कार्ड होता है वो हो सकता है, वहां से कोई चिट्ठी आपके पास आई हो वो आप हमें भेज सकते हैं। अगर कभी कोई डिसेबिलिटी आपको हुई है, मतलब काम से आपको छुट्टी लेनी पड़ी है और आपको कोई सहायता मिली है सरकार से, अगर आपने सेलेक्टिव सर्विस में रजिस्ट्रेशन किया है, अ, जो कि यहाँ पर 10वीं कक्षा में होता है स्कूल में, कोई तरह का मिलिट्री रिकॉर्ड हो आपके पास, किसी तरह का स्टेट या लोकल कोई भी आईडी कार्ड आपके पास हो सकता है, जो आप हमें भेज सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस तो अगर आपके पास है, तो प्लीज हमें आप एक उसकी कॉपी भेज दीजिए। The last category on this letter that you might have in your email is a contract or a legal document that you signed on a particular day. So, for example, if you signed a will for your estate on a particular day, it'll have your signature and the date. If you signed a prenuptial agreement, if you signed a rental agreement for any equipment like a rental car or to rent some materials for a party that you're having, or to rent a truck or an equipment, a lawn equipment, anything like that can be helpful. Agreement for renting furniture, car rentals, and of course, rental for land or trailer or some housing. जो अगली और आखिरी श्रेणी है यहाँ पर वो है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स या कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो आपने किसी एक नियत समय और तारीख पर हस्ताक्षर किए हों, जिसमें से हो सकती है आपकी वसीयत, अगर आपने कोई वसीयत बनाई है और आपने वो किसी भी महीने में किसी भी साल में बनाई है, जो कि जिस साल में और महीने में हमें प्रदर्शित करना है कि आप यहाँ थे, वो आप हमें दे सकते हैं। अगर आपने शादी से पहले कोई दस्तावेज बनाया है जहाँ पर लिखा हुआ है आपने शादी के बारे में कि आपकी शादी का जो करार है वो किस किस कारणों से वैध होगा, वो भी आप हमें भेज सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगर आपने किसी चीज को किराए पे लिया है, चाहे वो किराए पे कपड़े लिए हैं आपने किसी शादी में जाने के लिए, या कोई आपने अपने घर में ठीक कराने के लिए कोई इक्विपमेंट लिया है, जैसे कोई आपने अपना फर्श साफ करने के लिए कई बार लोग लेके आते हैं कारपेट क्लीनर, या किसी अन्य तरह का इक्विपमेंट जो आपने किराए पे लिया हो जिसकी रसीद आपके पास हो। अगर आपने कोई फर्नीचर किराए पे लिया है और उसकी रसीद आपके पास है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपने कार किराए पे ली है, जिसे कार रेंटल कहते हैं, उसकी रसीद आपके पास हो, वो हमें भेज दीजिए। अगर आपके पास कोई किराए का मकान है, कोई ट्रेलर है या कोई जमीन है, जिसका किराया आप देते हैं या आपको किराया मिलता है, आप उसकी रसीद भी हमें भेज सकते हैं। So, you've just heard a long list of evidence of documents that we would like for you to collect and give us to show that you have been present in the United States for some period of time. If for some reason you're not able to collect those, then please talk to our legal team so that we can think about some other options. We're going to give you some examples of other kinds of evidence, but please understand that they are not as strong as the evidence that we have given you as examples before. तो जो हमने आपको अभी दस्तावेजों की सूची बताई है, उसके आधार पर कई बार ऐसा होता है कि आप उनमें से हमें कुछ भी देने में सक्षम नहीं हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब हम आपको ऐसी चीजों की सूची बताने जा रहे हैं जो आपकी अमेरिका में होने की तिथि और समय को निर्धारित करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप हमें अपने किसी मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी अथवा किसी सहयोगी का कोई पत्र लाके दे सकते हैं, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हो कि आप उन्हें या उस व्यक्ति को कब से जानते हैं, आप उनसे पहली बार कहाँ मिले थे, उनका क्या नाम है, उनका पता क्या है, कहाँ रहते हैं, ईमेल क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, और आप उन्हें कब मिले थे पहली बार और कितने समय से आप उनको जानते हैं। अगर आपने कुछ समय साथ में गुजारा है, जैसे आप अक्सर उनसे मिलते रहते हैं, काम के लिए, अपने फन के लिए, या साथ में कहीं आपने समय गुजारा है, आप कहीं घूमने गए हैं,
या आप एक दूसरे के घर जाते हैं, इस तरह की चीजें आप हमें बता सकते हैं, या आप उनके साथ खेलने जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो अगर पत्र को आप हमें नोटराइज करा के भेज सकते हैं, तो वो एक बहुत पुख्ता सबूत माना जाएगा आपके केस के ताल्लुक रखते हुए। Mhm. So thank you so much, Soumya ji. As you said, one option is to get a letter from someone who is with you here in the United States. And the letter should say something like, I live here in the United States and I know this person. As Miss Soumya said, they can talk about how they've known you, work, friendship, relative. And they say that I know that this person has been in the United States from this time to this time. So they should say whatever their personal knowledge is. And if you have any questions about this, it's something that the legal team can help you with to make sure that that letter is correct and you send us the draft before you get it notarized. यहाँ आपके लिए ये बात जानना बहुत ही आवश्यक है कि जब आप ये पत्र किसी से लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनको पत्र में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस पत्र में क्या लिखवाना है, तो आपको ये बहुत साफ तौर पर पता होना चाहिए कि आपको उनसे क्या कहना है। आप हमारी लीगल टीम से इसके बारे में बात कर सकते हैं, जो आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगी। अगर आपका कोई मित्र है और अगर वो आपको पिछले 20 सालों से जानता है, तो आप उस मित्र से बोल सकते हैं कि मुझे एक अपने केस के लिए पत्र चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको कब से जानता हूँ, आपका नाम क्या है, आप यहाँ अमेरिका में कब से रहते हैं, और आप मुझे कितने सालों से जानते हैं। इस तरह का पत्र अगर आप नोटराइज करा के हमें देते हैं, तो वो पत्र भी आपके केस के लिए एक बहुत मजबूत सबूत रहेगा। Thank you. The next thing is pictures or photographs. Now, we have to be careful about this because the picture has to show exactly when that picture was taken and where that picture was taken. So, if you are sending us a picture, you can use your phone location data to make sure that the screenshot you send shows the location and the date being in the United States. And even if it's taken at a famous place in the United States, so maybe it's you standing in front of the White House or you standing in front of the Statue of Liberty, but we would also need some proof of when that picture was taken. So pictures can show a lot, but you need to make sure the picture is shows who is in that picture, what was happening, where you were, when you were there, and why. So use that smartphone location data or make sure that it's printed on the film when you get it developed to show when that picture was taken. इस श्रेणी में अगली चीज है आपकी फोटोज। अ, आपकी जब आप कोई फोटो खींचते हैं, तो उस तस्वीर में ये बहुत ही क्लियरली लिखा होना चाहिए कि वो कब खींची गई थी, कहाँ खींची गई थी, और उस फोटो में कौन-कौन है आपके साथ। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका जो फोटो आप हमें भेज रहे हैं, उसमें आपका परिवार है, तो आप बता सकते हैं कि ये फोटो आपने नायग्रा फॉल्स के सामने खींची है, या ये फोटो आपने व्हाइट हाउस के सामने खींची है, या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खींची है। किस दिन और समय ये फोटो खींची गई है, और वहां पर कौन कौन आपके साथ है, ये बहुत ही आवश्यक है। और आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, ज्यादातर लोगों के पास ये होता है, तो आप अपना स्मार्टफोन से उसकी लोकेशन देख सकते हैं, और जब आप उस पर लोकेशन निकालेंगे, तो वो पूरा जो विस्तृत ब्यौरा है, जो जानकारी है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उस फोटो के साथ हमें भेजें। वो बहुत ही आवश्यक है, और एक वो बहुत ही पुख्ता दस्तावेज माना जाता है आपके केस के लिए। Exactly. Thank you. And just like that, social media posts. So if you go to your Facebook or Instagram or other social media that you use and take a screenshot or print that post showing that I was here in this location at this time and I posted and it shows the date, especially if it shows you in front of a famous place in the United States. So you could send us that. But again, all of these things, the letters, the pictures, are last resort for evidence, and especially social media posts are a last resort for evidence.
इस श्रेणी में अगली चीज है सोशल मीडिया फोटोज। और आजकल सोशल मीडिया बहुत ही पॉपुलर है, जैसा कि हम सब जानते हैं। कई बार हम लोग फोटो खींच करके फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं या कोई दूसरे सोशल मीडिया आउटलेट पे डाल देते हैं। आप वहां से भी अपनी फोटो प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या अपनी पोस्ट हमें भेज सकते हैं जो कि आपने उस फोटो के साथ डाली थी, या अपने मित्रों को बताया था, परिवार वालों को बताया था कि आप कहाँ गए थे, आपने क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, और उसमें आपको अमेरिका का कौन सा फेमस जगह दिखाई पड़ रहा है। ज्यादातर हम सोशल मीडिया को सबसे आखिरी में रखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी और तरीका ना बचे तो। लेकिन ये तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हमें कुछ भी और देने में सक्षम नहीं हैं। तो कृपया करके आप इस सोशल मीडिया फोटोज को सब अपने पंक्ति में सबसे अंतिम कतार में रखें, क्योंकि ये हमारी पहली चॉइस नहीं होगी। Mhm. Very good. Thank you. And the next thing, the last example here are letters that someone sent to you, to your house where you live, with a copy of the envelope that shows your address and the stamp that has the date of when the post office sent that to your house. So, for example, you received a wedding invitation or a birthday card or something like that, a bill, anything with the envelope and that has the stamp and your address on it. And again, it's not as strong as some of the other evidence, but we can consider it if you can't find anything else. इस श्रेणी में जो आखिरी चीज है हमें आपको बताने के लिए, वो है कोई भी ऐसी चिट्ठी जो आपके पास आई हो, जो आपको मेल से आई हो, जिसमें उसकी दिन और उसका तारीख हमें बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा हो। जैसे किसी की शादी का कार्ड अगर आपके मेल में आया है, तो आप हमें उसका जो कार्ड का एनवलप है, ऊपर का लिफाफा, उस पे जहां पर वो स्टैंप लगी होती है, उसकी एक कॉपी हमें भेज सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भी हमारे लिए अंतिम पंक्ति में एक सबूत होगा, क्योंकि इसको भी हम सबसे पहले निश्चित तौर पर कंसिडर नहीं कर सकते। Mm. लेकिन अगर आप ये सारी चीजें जो हमने आपको पहले बताई हैं, उनमें से कुछ भी आप हमें नहीं दे पा रहे हैं, तो हम, अगर आप हमें ये भेजने में सक्षम है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं जब आप हमें वो भेजेंगे कि वो कितनी अच्छी हालत में है, जब आप हमें वो भेज रहे हैं और उसमें क्या-क्या चीजें स्पष्ट तौर से हमें नजर आ रही हैं। Mhm. Thank you. And one last thing that we want to show you is this table, which is a picture that we put in the email that we send you that explains which months you need to show and which years you need to show your presence in the United States. This is going to show you up and down. It's going to show you the years. So, for example, 2022, 2023, 24, 25, 26. And in the side rows, it will show you the months, January, February, March, April. So when we send you your instructions of which months and years of the documents we need from you, you will see a table like this in your email, and it will show you when to start your document collection. And so you'll see, for example, in this one, it says January 2022, not needed, February, not needed, March, not needed. So that means that this person should start collecting evidence from April 2022 all the way until the end of 2026. जो अंतिम चीज है जिसके बारे में हमें आपसे बात करनी है, वो है ये टेबल जो आप देख रहे हैं। और ये टेबल हमें ये बताती है कि हर केस के हिसाब से हमें आपसे क्या-क्या दस्तावेज किस-किस साल के लिए चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो टेबल आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, उसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के कोई भी दस्तावेज हमें इस क्लाइंट से नहीं चाहिए। तो अगर हम इस व्यक्ति को ये ईमेल भेजेंगे, तो उस व्यक्ति को अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2026 तक के सारे दस्तावेज हमें भेजने पड़ेंगे। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होगा। तो जब वो ईमेल आपके पास आए, कृपया ध्यान दें कि आपको किस समय से किस साल में आपको हमें वो दस्तावेज देने हैं। Yes, thank you. And you do not have to use this table to send it back to us. You don't have to fill it out and send it back to us. It's just for you to help you see
in a table format what you might need. So, for example, you can print it out and use it at home if you want, if that will help you. Like, for example, if April 2022, you have a bill, so you can write check and say that I have a bill for this month. It's just for your sake. You do not need to turn this in and return it to us. यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि आपको ये टेबल हमें भर के वापस नहीं भेजनी है। ये सिर्फ हमने आपकी सुविधा के लिए बनाई है। अगर आप चाहें और आपको उचित लगे और अगर आपको मदद मिले, तो आप उसकी एक कॉपी प्रिंट कर लीजिए, अपने घर में लगा लीजिए और जब आप हमें दस्तावेज़ खोजना शुरू करते हैं, इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो आप उस पर टिक करते जाएँ कि आपके पास कौन-से महीने के दस्तावेज़ मिल गए हैं, जो कि आप हमें भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर तैयबा जी ने जो आपको बताया कि अप्रैल का मान लीजिए आपको कोई बिजली का बिल मिल गया है, तो आपने उसको यहाँ पर टिक कर दिया, अब आपको अप्रैल के बारे में नहीं सोचना है। अब आपको मई के बारे में सोचना है, फिर आपको जून के बारे में सोचना है। तो इस तरह से ये आपको टेबल मदद करेगी जब आप वो दस्तावेज़ इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं और ये समझते भी हैं कि सारी चीज़ें इकट्ठे करने में आपको काफ़ी परेशानियाँ आती हैं और ये काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है जब हमें बहुत सारे दस्तावेज़ आपसे चाहिए होते हैं। Thank you so much. So, if you have any questions, please let someone know in our legal team. We're happy to help you. And thank you so much for listening. और जैसा कि हमेशा हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, आपको इसके बावजूद अगर कोई चीज़ इस टेबल या आपकी सूची के बारे में समझ में ना आए, प्लीज़ हमारे ऑफ़िस को कॉल कर सकते हैं आप और हम में से कोई भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।